students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. तो बच्चों चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि आपके पास बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती हैं, ट्रिकी सिचुएशंस आती हैं जिनको आप खुद से हैंडल करते हो। कभी कभी आप पैनिक हो जाते हो तो आप अपने एल्डर्स की हेल्प लेते हो। तो ऐसी ही एक ट्रिकी सिचुएशन जो है हमारे फार्मर के आगे आ गई है, वो कैसे उसे हैंडल करता है आइए इस स्टोरी को पढ़ के जान लेते हैं, जिसका नाम है अ सीक्रेट वेल टोल्ड। समरी जान लेते हैं। दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ पुअर फार्मर गोविंद एंड हिज वाइफ राधा हु लिव्ड इन अ स्मॉल कॉटेज बाय द फील्ड। Read this fascinating story about a farmer who handles a tricky situation very cleverly. Long ago there lived a poor farmer, Govind, and his wife Radha in a small cottage by the fields. Several other peasant families lived in their neighborhood. All of them earned their humble living by toiling on the king's land. ये सब के सब क्या करते थे? किंग जो राजा है उनके खेत हुआ करते थे, लैंड हुआ करते थे, ये सब उसमें काम किया करते थे। गोविंद एंड राधा वर्कड फॉर फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग एंड अर्नड major wages to make ends meet, yet they were a contented couple. ठीक है, पूरा दिन काम करने के बाद भी इनको जो इनका मेहनताना होता था वो कम मिलता था, लेकिन वो उसमें भी क्या थे? हैप्पी थे। Govind was a quite intelligent and hard-working man. He was well loved and respected by his friends. वो इतना अच्छा था कि उसको सारे लोग पसंद करते थे। His wife Radha was, however, an incurable talker. She found it impossible to keep her mouth shut, except when she was eating her meals. Her friends often poked fun at her chattiness. और उसकी वाइफ क्या थी? चैटर बॉक्स थी। दिन भर वो बोलती रहती थी, चुप नहीं होती थी। चुप तब होती थी जब वो खाना खा रही होती थी, तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे। One day when Govind was plugging the fields, he hit upon an iron chest buried in the ground. He looked around to make sure no one was around. Then he opened the chest and was amazed beyond words at what he saw. Can this really be true? Are all these riches mine? Oh Lord, he exclaimed as he held out of his hand a solid bar of gold wrapped in fine red silk. अब एक दिन जब वो खुदाई कर रहा था, किसान खुदाई कर रहा था, तो उसे क्या मिला? एक खजाना मिला, एक उसको डब्बा मिला जिसमें उसको रेड कलर के कपड़े में गोल्ड कॉइन्स कवर्ड मिले थे। तो वो बिल्कुल हैरान हो चुका था, बिल्कुल सरप्राइज हो चुका था कि क्या ये मुझे मिले हैं। He was delighted to count 20 such bars in the chest. He quickly shuts the chest for fear of losing his treasure. He then buried it in the ground once again and hurried back home. अब उसने क्या किया? जल्दी से वो कॉइन्स गिने, इधर उधर देखा, क्योंकि वो चाहता था वो कॉइन्स किसी और को ना मिल जाएं। तो उसने उसको वापस से उसी में दबा दिया और कहाँ चला गया? अपने घर चला गया। On the way, Govind kept thinking about his good fortune, but he was not sure how he could save it for his own family. He was afraid that if the news of the treasure leaked out, the gold bars would be stolen or the king would seize them and nothing would be left with him. अब वो रास्ते में जा रहा था, उसके दिमाग में बहुत क्वेश्चन चल रहे थे कि क्या होगा अगर इसको कोई और देख लेगा, राजा पकड़ लेगा तो वो तो उसको सीज कर लेगा, मुझे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। He thought of the chest of bars again. It was very heavy and one pair of hand was not enough to lift it and carry it home. Could he approach any of his neighbors for help? अब वो जो डब्बा था, जो बॉक्स था, वो काफ़ी हैवी था, तो उसे लगा कि मैं इसको अपने दोनों हाथ से उठाकर अपने घर नहीं लेके जाऊंगा। तो उसके दिमाग में एक और क्वेश्चन चल रहा था कि क्या मैं किसी पड़ोसी की हेल्प ले सकता हूँ उसे उठाने में। He shuddered at the thought. The neighbor was sure to tell others. They would tell others and within no time everybody would know about his gold. What then? अब उसे लगा कि मैं एक को बताऊंगा, वो आगे जाके 4 लोगों को बताएगा, ऐसे तो मेरे गोल्ड कॉइन सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। Govind could think of no one with whom he could risk sharing his secret except his wife Radha. But would Radha be able to keep the secret to herself? He was not too sure about it. Alas, Radha's weakness of endless chatter cannot keep any secret, he lamented.
अब उसे लगा कि मैं किसी और को बताने की बजाय अपनी बीवी को बता देता हूँ, वो मेरी हेल्प करेगी। लेकिन फिर उसे ये था कि उसकी बीवी क्या करती थी, चैटिंग करती थी, लोगों से बात करती थी, तो उसे लगा कि कहीं वो किसी के आगे मुंह ना खोल दे। But Govind was an intelligent man. He thought hard and devised a clever plan to safeguard his secret. That evening, he went back to the fields and spent quite some time there. Nobody had any clue about what he did there. But when he returned home, he had a smile on his face. अब उसने क्या किया, अपनी बुद्धिमानी दिखाई। वो पूरे शाम तक वहाँ पे काम करता रहा। जब लोग अपने घर की तरफ जा रहे थे, वो ये सोच रहे थे कि ये क्यों यहाँ पे रुका हुआ, ये अपने घर क्यों नहीं जा रहा। लेकिन जब वो घर अपने वापस आया तो उसके फेस पे क्या था, स्माइल थी। As night fell, he asked Radha to follow him to the fields. Radha was highly excited and wanted to talk on the way, but Govind bade her keep quiet. They had barely gone some distance when Radha stumbled upon her own earthen pot in which she stored water at home. As she peeped into it, she found it full of hot porridge brewing by itself. She was surprised to see it there. She wanted to examine it closely, but Govind urged her to make haste as they had a long walk ahead. अब वो राधा को, अपनी वाइफ को रात के अंधेरे में उस खेत की तरफ ले गया जहाँ पे वो बॉक्स जो था वो ढका हुआ था। Soon they stopped in front of the fence, all made of walking sticks, tied together with a silver ribbon which glistened in the dark. As they walked past it, they came across a puddle which used to be full of rainwater. Today it was overflowing with curd milk. Radha followed Govind, totally bewildered by the unusual sights. She then heard a faint mewing sounds that seemed to be coming from the nearby bushes. As she peeped into the bushes, she was astonished to find a newly born kitten sitting amidst broken egg shells. अब जैसे जैसे वो आगे जा रहे थे, उनको कुछ नई नई चीज़ें मिल रही थी। फिर उनको झाड़ियों में से किसी के रोने की आवाज़ आई। जब उन्होंने वहाँ पे झाँक के देखा तो वहाँ पे कौन था, एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा था। Soon, Govind and Radha reached the fields where the treasure lay buried. Govind dug deep into the ground and took out the iron chest. He opened it and showed Radha the gold bars wrapped in red silk. But by now, Radha's mind was too full of strange sights to say anything. Together, they brought the gold home and hid it well. अब वो उसको उस स्पॉट पे जा कर के ले गया जहाँ पे वो गोल्ड चेस्ट जो है वो छुपा हुआ था। बाहर निकाला जैसे तैसे और उसको कहाँ ले गए, अपने घर ले गए। The next morning, Radha was up very early. She could not wait to meet her friends at the well, although she promised her husband once again that she wouldn't say a word about the strange happenings of the previous night. Her tongue seems to be eager to break the long साइलेंस। अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, राधा जल्दी उठ गई। उसको कुएं के पास अपनी सहेलियों से मिलने का बड़ा मन कर रहा था। उसे लगा कि मैं उनको जा कर के कल रात वाली बात बताऊं। हालांकि उसने अपने पति को प्रॉमिस किया था कि वो किसी से कुछ नहीं कहेगी, लेकिन उसके पेट में दर्द हो रहा था। As soon as the women gathered around the well, Radha said to them, "Wait till I tell you about the queer things that I saw last night. I could hardly believe what I saw." Then she started telling them about her earthen pot with porridge brewing in it by itself, and the fence made of walking sticks tied together with silver ribbon. अब उसने धीरे धीरे जो वाकया हुआ उसके साथ वो बताना शुरू किया। ऐसी चीज़ें वो बता रही थी जिस पे कोई भी बिलीव नहीं कर पा रहा था। उसने अर्दन पॉट देखा जिस पे पोरेज भरा हुआ था। थोड़ा आगे गई तो उसको वॉकिंग स्टिक्स नज़र आ रही थी। तो ये सब चीज़ें वो बता रही थी। Her bubbly voice could be heard at quite a distance telling about the puddle full of fresh curd milk. फिर उसने आगे एक पडल देखा, एक गड्ढा देखा जो कर्ड मिल्क से भरा हुआ था। And the cat which has a kitten out of egg. और उसने ऐसी कैट देखी जिसने अंडे दिए थे। अब बताओ कैट अंडे देती है क्या? लेकिन नहीं, उसने उन लोगों को बताया कि उसने एक बिल्ली देखी जिसने अंडे दिए हैं। उन अंडों में से कौन निकले हैं? बिल्ली के बच्चे निकले हैं। Radha's friend looked at one another with raised eyebrows and then split into laughter. "Oh Radha," they said,
You certainly have a wild imagination. We found it hard to believe you on a few earlier occasions also, but this time you have strayed much too far. They laughed as they repeated what Radha had said. When Radha swore that she was narrating what she had actually seen, they made more fun of her and asked her if she had also seen goblins riding sheep and dogs or cows with मंकी हेड्स। अब वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगे क्योंकि ऐसी कोई चीज़ जो उसने देखी थी वो होती ही नहीं है। Radha felt offended. She said, I promised my husband not to reveal the secret to anyone, but if you do not believe me, listen to this. So saying, she told all the women present there about the treasure chest containing 20 solid bars of gold, each wrapped in fine red silk. The woman found it all to be a piece of Radha's heated imagination. अब उसने सच बताया कि उसे क्या मिला था, एक गोल्ड चेस्ट मिला था, लेकिन वो लोग, वो जो औरतें थी, वो उसकी इस बात पे भी यकीन नहीं कर रही थी। They laughed at whatever she had said. Did you ever hear a such story? They asked one another. Radha is probably still fast asleep and dreaming about the gold bars wrapped in silk. Govind, who was hiding behind a tree close to the well, overheard everything. His plan had worked well. Nobody believed a word of what Radha had said. तो ये किसका प्लान था? उसके पति गोविंद का ही प्लान था। उसने ऐसी चीज़ों का रचना की कि आगे मेरी बीवी, जिसकी बोलने की आदत है, लोगों को बताने की आदत है, चुगली करने की आदत है, तो वो जब ये बातें बताएगी तो कोई भी उसकी बात पे बिलीव नहीं करेगा। He went home contented that he could rest in peace. Slowly and wisely he sold some of the gold and set up a business for himself. With his hard work and sharp brain, he gradually earned lots of money. He and Radha spent the rest of their lives in ease in their new comfortable house. They came to be respected by the villagers, although the women at the well still talk about Radha's incredible story and laughed about it. अब उसने क्या किया? अब उसे पता था कि उसकी जो बीवी है, उसने जो स्टोरी सुनाई है उस पर कोई बिलीव नहीं करेगा और उसका जो सोना है वो बच जाएगा, मतलब उसको सेव करके रखेगा। धीरे धीरे उसने क्या किया, उसको खर्चना शुरू किया, अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया, अपने लिए नया घर खरीदा और खुशी खुशी वो लोग उस घर में रहने लगे। Now word bucket, toiling means working hard, incurable, not able to be cured, seize to take something by force, secret यानी कि confidential, porridge, a dish consisting of oatmeal or another meal or cereal boiled in water or milk, जिसे हम दलिया भी कहते हैं। Goblins means mischievous little spirits. अब इसकी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। थिंक एन आंसर, टिक द करेक्ट ऑप्शन। लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ डैश फार्मर गोविंद। तो वो कैसा फार्मर था? रिच था, सेल्विश था, प्राउड था, वो पुअर था। तो आप यहाँ पे पुअर लिखेंगे। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। गोविंद एंड राधा वर्कड फ्रॉम डैश टिल डैश। तो वो मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक काम करते थे। तो आप लिखेंगे फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। इसी तरीके से आप बाकी फिल इन द ब्लैंक्स भी फिल करेंगे। लेट्स मूव ऑन, कंप्लीट दिस टेबल। राधा केम अक्रॉस सम स्ट्रेंज हैपनिंग्स व्हाइल शी अकम्पनीड गोविंद टू द फील्ड्स। फिल इन द डिटेल्स इन द फॉलोइंग टेबल्स। अब राधा ने काफ़ी चीज़ें अपने रास्ते में देखी थी। क्या क्या वो चीज़ें थी ये आपको बताना है। जैसे उसने एक अर्दन पॉट देखा जिसमें पॉरेज भरी हुई थी खुद से, ठीक है, मतलब उसमें पॉरेज जो थी वो पहले से थी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाकी की जो चीज़ें हैं वो क्या कर रही थी या कैसे फॉर्म में उसको दिखी थी, मिली थी। आप यहाँ पे टेबल फिल करेंगे। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वाज गोविंद? गोविंद वाज काइंड, हेल्पफुल। तो सारे लोग उसको क्या करते थे? पसंद करते थे। ही वॉज लाइक्ड बाय एवरीवन, ही वॉज लव्ड बाय एवरीवन। इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस के आंसर देंगे। हम बढ़ते हैं आगे वैल्यू इनसाइड की तरफ। With his hard work and sharp brains, Govind earned lots of money. Do you agree that hard work and intelligence are the keys to success? What other qualities can help us achieve success? Discuss with your partner. अब यहाँ पे बताया गया है कि जब आप हार्ड वर्क करते हो, मेहनत करते हो, तो आपको उसका फल ज़रूर मिलता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि हमें हार्ड वर्क क्यों करना चाहिए, हार्ड वर्क हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है।
Now grammar stroke, reading and writing skill, simple past tense plus past continuous tense. Simple past tense and past continuous tense are often used together. इनको साथ में यूज़ किया जाता है अक्सर. When Govind was plugging the field, he hit upon an iron chest. Now fill in the blanks with the correct form of verbs, either simple past or past continuous. ठीक है, तो यहाँ पे आपको fill in the blanks fill करने हैं. या तो आप simple past फॉर्म को लिखेंगे या फिर आप पास्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म को लिखेंगे वर्ब की. ही डैश सिट ऑन द रिवर बैंक व्हेन ही डैश अ मैन ड्रॉनिंग. ठीक है, अब यहाँ पे आपको सिट की क्या करनी है, पास्ट फॉर्म लिखनी है. तो आप लिखोगे ही सैट ऑन द रिवर बैंक व्हेन ही सॉ. सी का क्या हो जाएगा, सॉ हो जाएगा अ मैन ड्रॉनिंग. इसी तरीके से आप बाकी फिल इन द ब्लैंक्स भी फिल करेंगे. हम बढ़ते हैं आगे. The adjectives in these sentences have all got mixed up. Write the correct adjective in the given spaces. अब यहाँ पे आपको कुछ sentences दिए गए हैं, इनके जो adjectives हैं वो mix हो चुके हैं, तो आपको correct adjective को space में लिखना है. ठीक है. Now word power. An intelligent person has intelligence. A strong person has strength. What do the following have? A wise person has, उस पर क्या होगा, विजडम. आप यहाँ पे विजडम लिखेंगे. अ काइंड पर्सन हैव काइंडनेस. ठीक है. फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट विच मीन्स द सेम एज फॉलोइंग. तो आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं जिनका मीनिंग सेम होता है. लाइक वन हु कैन नॉट बी क्योर्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, इनक्योरेबल बोलते हैं. A number of words have been used in the story to show surprise. Look at the words given below and cross the ones not related to surprise. तो आपने चैप्टर में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स पढ़े जो सरप्राइज से रिलेटेड थे. तो अब आपको क्या करना है, उन वर्ड्स को सर्कल करना है जो सरप्राइज से रिलेटेड नहीं है. जैसे कि अमेज्ड, ये भी सरप्राइज का ही फॉर्म होता है. डिलाइटेड, ये सरप्राइज का फॉर्म नहीं होता. सरप्राइज मतलब आश्चर्य होना, तो डिलाइटेड मतलब खुश होना. तो आप इसको सर्कल कर सकते हो. इसी तरीके से आप ढूंढेंगे कौन सा वर्ड सरप्राइज का रिलेटेड नहीं है. ठीक है, तो आप उसको सर्कल करेंगे. नाउ लेट्स मूव ऑन. क्रिएटिव जंक्शन. डू यू थिंक इट इज़ इनफ टू बी जस्ट लकी और डज वन नीड इंटेलिजेंस टू मेक द बेस्ट ऑफ वंस गुड फॉर्चून. तो अपनी किस्मत बनाने के लिए, अच्छी किस्मत बनाने के लिए आपका लकी होना ज़रूरी है या आपका इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है. मेरे ख्याल से दोनों ही होने चाहिए. आपका लक भी आपके साथ होना ज़रूरी है और आपकी इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धिमत्ता भी आपके साथ होनी ज़रूरी है. अब सोचो, गोविंद को वो चेस्ट मिल गया था तो वो उसका लक था, लेकिन उसने अपनी बुद्धि से उसको अपने घर तक पहुंचाया. सोचो, अगर वो रास्ते से जा रहा होता, उसको कोई दूसरा देख लेता, वो उससे मांग लेता, या अपने किसी फ्रेंड की हेल्प लेता, वो उससे ले लेता, तो उसको गोल्ड कॉइन्स क्या करने पड़ते, बांधने पड़ते, किसी लोगों को देने पड़ते. लेकिन उसने अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया और उनको चोरी छुपे अपने घर तक उसने पहुंचाया, और वो ही उन सिक्कों का असली हकदार था. So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.